Dear students, let us study our next topic, methods of preparation of colloids. Colloids या colloidal solutions को कैसे हमने prepare करना है? You know we have two type of colloids, lyophilic colloids and lyophobic colloids. What are lyophilic colloids? Colloids in which dispersed phase have strong affinity for the dispersion medium. And what are lyophobic colloids? Lyophobic colloids are those in which there is no affinity between the dispersed phase and the dispersion medium. Lyophobic, phobia will hate करना, ठीक है ना? Let us discuss their methods of preparation. पहले हम बात करेंगे बच्चे preparation of lyophilic colloids. Lyophilic colloids जैसा मैंने बताया कि lyophilic colloids are the colloids which have strong affinity for the dispersion medium. Strong affinity होने की वजह से they easily pass into dispersion medium and we simply shake the colloidal particles with the dispersion medium. It means such colloidal solutions can be simply prepared by shaking और बार्मिंग। ज्यादा आपको बार्म करना पड़ सकता है, ठीक है बच्चे? तो इनको हम आसानी से बना सकते हैं। तो लायोफिलिक क्लोराइड बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड either by simple shaking or by warming with water. Why? Because they have affinity for the dispersion medium. They have attraction for the dispersion medium. They have tendency to pass easily into the dispersion medium. That is why their preparation is very easy. So these can be prepared either by simply shaking the dispersed phase in the dispersion medium or by warming the dispersed phase with the dispersion medium. Lyophilic colloids have strong affinity for dispersion medium. For example, colloidal solution of starch, protein are prepared simply by shaking or warming with water because they easily pass into solution. Okay. Next category is preparation of lyophobic colloids. Lyophobic colloids को आप कैसे बनाएंगे? How you prepare the lyophobic? Lyophobic colloids cannot be prepared by simple shaking or warming because they have no tendency to go into. हम क्या करते हैं? हम उनके लिए फिर स्पेशल मेथड्स लगाते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड यानी कि एग्रीगेट करना, सॉल्यूशन के अंदर ही उनको इकट्ठा करना पार्टिकल्स को और कोलाइडल साइज का तैयार करना, एग्रीगेशन मेथड है ना। इसमें फिर आगे डिफरेंट टाइप्स है कंडेंसेशन मेथड में। फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड, केमिकल तरीके से अंडरस्टूड है, केमिकल रिएक्शन करवा के। फर्स्ट मेथड इज बाय डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन मेथड में जैसे हम अर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व बनाते हैं, AS2S3, ये सॉल्व याद रखें बच्चे, अर्सेनियस सल्फाइड एज सच वाटर में सॉल्युबल नहीं है। आप सीधा इसको पानी में डालेंगे, ये डिसॉल्व भी नहीं होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन तो दूर की बात। फिर हम क्या करते, वी टेक अर्सेनियस ऑक्साइड AS2O3, ये कंपाउंड लेते हैं हम, अर्सेनियस ऑक्साइड। इसमें से ये पानी में सॉल्युबल है, इसके सॉल्यूशन में से हम पास करते क्या बच्चे, H2S गैस। वी पास H2S gas through solution of dilute solution of arsenious oxide. This is water soluble. जब हम पास करते क्या होता है बच्चे, अर्सेनियस सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स पानी में तैयार होते हैं, क्योंकि अर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 प्लस क्या बनेगा बच्चे, वाटर। अर्सेनियस सल्फाइड के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे बच्चे, they have no tendency to remain in water. As soon as they are formed, they start condensing, grouping, and convert into colloidal dimension. अपने आप को convert कर लेते हैं किसमें बच्चे, colloidal dimension, and we get colloidal solution. हमें क्या मिल जाता है बच्चे, colloidal solution। ठीक है, इसमें हम डबल डिकम्पोजिशन क्यों कहेंगे बच्चे, इसमें आप देखें दोनों मॉलिक्यूल जो हमने यूज किए, they get decomposed.
एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, है ना। नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, सिंपल डबल डिकम्पोजिशन। AS2 AS2O3 है, AS2O3, इसमें भी AS3 पॉजिटिव है, इसमें भी AS3 पॉजिटिव है, इसमें भी O2 नेगेटिव है, इसमें भी O2 नेगेटिव है, इसमें भी H1 पॉजिटिव है, इसमें भी H1 पॉजिटिव, इसमें सल्फर 2 नेगेटिव है, इसमें भी सल्फर 2 नेगेटिव। So there is neither oxidation nor reduction. There is simple double decomposition, a change of ions. So by this method, we prepare colloidal solution of insoluble compounds. Was one method. Second method is बच्चे by reduction. अब इसमें reduction होगी। First method था, उसमें थी double decomposition. This method is reduction. Reduction method से हम metals के colloidal solution बनाते हैं, है ना, interesting. ऐसे मेटल आप गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इनको पानी में डालेंगे, या पानी में डिसॉल्व होते नहीं होते, बट बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर देयर क्लाइड सॉल्यूशन। हम क्या करते, इनके सॉल्ट लेते, देयर सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, जैसे गोल्ड क्लोराइड ले लिया AuCl3, इसको रिड्यूसिंग एजेंट से, जैसे हमने लिया यहाँ पे स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2, SnCl2 ने इसको रिड्यूस कर दिया इनटू गोल्ड एटम, प्लस क्या बन गया बच्चे SnCl4, बैलेंस आप खुद कर सकते, SnCl4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। टिन कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है, इट हैज टेंडेंसी टू शो +2 एज वेल एज +4, ठीक है। तो ये बच्चे किसमें कन्वर्ट हो गया, गोल्ड, गोल्ड एटम्स। गोल्ड एटम किसमें तैयार किया आपने, पानी के अंदर। गोल्ड एटम की पानी में रहने की टेंडेंसी है नहीं, व्हाट हैपेंस, दे स्टार्ट एग्रीगेटिंग, होना शुरू हो जाते हैं एंड फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बाय कंडेंसेशन। कंडेंस होके क्या बनाते हैं बच्चे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ये मेथड आ गया बच्चे। इसी तरह से और भी यूज कर सकते हैं आप रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज वाटर की प्रेजेंस में, ये बच्चे देखें फॉर्मिक एसिड बन जाता HCOOH, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलते वो इसको रिड्यूस करते, गोल्ड प्लस HCl। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस करते गोल्ड क्लोराइड को, गोल्ड प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। You can use stannous chloride, you can use formaldehyde, or you can use hydrazine for this method, the reduction method, है ना। जिसने रिड्यूस किया वो खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, वो भी देख ले, स्टेनस से बना स्टेनिक, +2 से किसमें गया +4, तो गोल्ड की इसमें हुई रिडक्शन, +3 से 0, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन मेथड। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समझे आप इसमें। बेसिक क्या है बच्चे, कि हम क्या कर रहे हैं कंडेंसेशन मेथड में, एग्रीगेशन मेथड में, हम जो एटम्स या मॉलिक्यूल है उसको विद इन द डिस्पर्शन मीडियम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी नहीं है डिस्पर्शन मीडियम में रहने की, दे आर एग्रीगेटिंग एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। थर्ड मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में हम नॉन मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। नॉन मेटल आपको पता है क्या होते हैं बच्चे, रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, दे आर इन रिड्यूस्ड फॉर्म, H2S। हमने सल्फर का बनाना है, तो इसमें सल्फर कौन सी फॉर्म है, -2, रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना। तो इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद एक्स्ट्रा है वो इसको लॉस करवाने पड़ेंगे, ऑक्सीडाइज होगा तभी तो सल्फर बनेगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन मेथड। सो बाय दिस मेथड वी प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड आयोडीन, जैसे H2S प्लस ब्रोमीन, सिंपल, यू गेट सल्फर प्लस HBr, अदरवाइज सल्फर पानी में डिसॉल्व नहीं होता बट बाय दिस मेथड इट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। एक और मेथड दिया बच्चे, H2S की ही ऑक्सीडेशन करी है नाइट्रिक एसिड, पहले किया हमने ब्रोमीन से, अब नाइट्रिक एसिड से वी गेट सल्फर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी तरह आयोडीन का बनाना हो, HiO3 से करते हैं हम, Hi प्लस HiO3 वी गेट वाटर प्लस आयोडीन। इन मेथड से हम क्या बच्चे, नॉन मेटल्स के कोलाइडल बनाते हैं, अदरवाइज विच आर नॉट पॉसिबल। अब डायरेक्ट डिसॉल्व करेंगे सल्फर को पानी में, कोशिश करेंगे, दैट विल नॉट हैपन, ठीक है। उसके बाद है बच्चे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से हम मेटल हाइड्रोक्साइड्स की कोलाइडल बनाते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये क्या है बच्चे, इनसॉल्युबल,
अब अगर आप कोशिश करते हैं सीधा फेरिक हाइड्रोक्साइड को लेके पानी में डिसॉल्व करके कोशिश करते हैं, शेक करते हैं, वार्म करते हैं, नथिंग हैपेंस। फिर क्या करते हैं हम इसको इनसाइड द सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। कैसे? फेरिक क्लोराइड लेते हैं, फेरिक क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है, वी टेक फेरिक क्लोराइड, इट इज वाटर सॉल्युबल, है ना। इसका सॉल्यूशन बनाते, ठीक है, और बॉयल करते पानी के साथ। फेरिक क्लोराइड जब बॉयल करते फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइज हो जाता और क्या बना देता बच्चे? फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर तैयार हुआ। फेरिक हाइड्रोक्साइड की टेंडेंसी, इसके मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर तैयार हुए, इनकी टेंडेंसी पानी में रहने की है नहीं, सो दे स्टार्ट एग्रीगेटिंग इनटू ग्रुप्स एंड अल्टीमेटली वी गेट मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड। हमें क्या मिल जाता है बच्चे? मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड, है ना। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड, सेम तरीका, वाटर से बॉयल किया, वी गेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। सॉल्ट किसको बोलते हैं? ऑलरेडी लिक्विड, है ना बच्चे। ये थे मेथड्स, केमिकल मेथड्स। नेक्स्ट इज बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ये भी इंटरेस्टिंग मेथड है। जैसे सल्फर और फास्फोरस अल्कोहल में सॉल्युबल, अल्कोहल में, यानी कि अल्कोहल में ये टू सॉल्यूशन बना देंगे। आपने क्या करना, पानी में ये कब सॉल्युबल है, आपने क्या करना, पहले इनका अल्कोहल में सॉल्यूशन बनाना, फिर उसको पानी में डाल देना और शेक करना। व्हाट हैपन? दे विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बना देंगे बच्चे? कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि पानी में इनकी रहने की टेंडेंसी क्या है? कम। तो पानी से दूर भागेंगे, तो पानी से दूर भागने के चक्कर में ये क्या करेंगे? एग्रीगेशन, एंड वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन। हमें क्या मिल जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इज बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो गया बच्चे? एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। नाउ नेक्स्ट इज बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ सब्सटेंस इनटू सॉल्वेंट। ये भी एक तरीका है। डायरेक्टली वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस को सॉल्वेंट में कंडेंस कर देना, वेपर्स को सीधा पास करना डिस्पर्शन मीडियम्स में, है ना। जैसे सॉल्ट ऑफ सल्फर एंड मर्क्यूरी इन वाटर आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। The vapors are directly passed through cold water, they condense, and we get chloride solution. Stabilizing agent is used, ammonium nitrate. थोड़ा सा डाल देते बीच में अमोनियम नाइट्रेट, दैट स्टेबलाइज द क्लोराइड सॉल्यूशन। एक और मैथड बच्चे दिया है, एक्सेसिव कूलिंग। Chloride solution of ice in organic solvents like ether or acetone is obtained by this method. मतलब पानी को एसीटोन में या ईथर में डालिए, पानी ईथर और एसीटोन में सॉल्युबल है, फिर उसको एक्सेसिव कूलिंग करिए। जो वाटर है आपको पता है, जब आप ठंडा करेंगे कंडेंस होने की कोशिश करेगा, एंड वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन। हमें क्या मिल जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो मेथड्स हमने पढ़े जितने भी 4 मेथड्स, ऑल दीज वर कंडेंसेशन मेथड। कंडेंस किया, स्मॉल पार्टिकल से बड़ा पार्टिकल बनाया, मैक्रो मॉलिक्यूलर, सॉरी मल्टी मॉलिक्यूलर टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन, मल्टी मॉलिक्यूलर, स्मॉल पार्टिकल्स कंडेंस्ड टू गेट द कोलाइडल पार्टिकल। जितने 4 मेथड हमने पढ़े। और सेकंड कैटेगरी है बच्चे डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मतलब ब्रेक करना, डिसइंटीग्रेशन मेथड। मतलब हमारे पास बिग साइज के पार्टिकल्स हैं, सस्पेंशन साइज के पार्टिकल्स हैं, उनको कन्वर्ट करना किसमें? कोलाइडल साइज में। बिग साइज पार्टिकल्स दे आर कन्वर्टेड इनटू क्या बच्चे? कोलाइडल पार्टिकल्स। कैसे करेंगे? तोड़ के करेंगे ना, डिसइंटीग्रेट, बिखेर के करेंगे ना। जो पहला मेथड था वो क्या था? छोटे छोटे पार्टिकल थे, हमने 4 मेथड पढ़े, वो कंडेंस हुए, छोटे पार्टिकल्स को कंडेंस किया, दैट वाज कंडेंसेशन मेथड। नाउ दिस वन इज डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब डिसइंटीग्रेशन कैसे करते? एक है मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल एनर्जी लगा के। ये है बच्चे कोलाइडल मिल, जैसे आटा पीसने की चक्की होती है, इस तरह कोलाइडल मिल है। इसमें 2 बच्चे देखें प्लेट्स हैं, 2 मेटल डिस्क नियरली टचिंग ईच अदर। हमने तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाया, बट दे आर नियरली टचिंग ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड। दिस इज कोलाइडल मिल। कोलाइडल मिल में आपने सस्पेंशन डाल देना। आपने क्या करना, गिवन सब्सटेंस की सस्पेंशन बनानी इसमें, इन द डिस्पर्शन मीडियम। सस्पेंशन को डाल देना किसमें बच्चे? कोलाइडल मिल में, एंड वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन। हमें क्या मिल जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। जब ये इसमें से पास होके मेटल डिस्क इनको पीस देगी छोटे छोटे पार्टिकल में, एंड देयर पार्टिकल साइज इज इक्वल टू कोलाइडल पार्टिकल, एंड वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन। By this method, salt of blacking, paints, varnishes, dyes, etc. are prepared. Method.
इन दिस मेथड द सब्सटेंस इज फर्स्ट पाउडर्ड, सब्सटेंस को पहले पाउडर कर लो, मिक्स इट विद डिस्पर्शन मीडियम to get suspension. The suspension is then introduced into colloidal where suspension particles are broken into colloidal dimension and thus colloidal solution is obtained. बाकी colloidal mill क्या होती है मैंने बता दिया. It consists of two metal discs nearly touching each other and rotating in upward direction at a very high speed, 7,000 revolutions per second. Next method is, this is very important method, electrical disintegration. हम क्या करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे टू डिसइंटीग्रेट द सब्सटेंस. इस मेथड से हम मेटल्स के कोलाइड सॉल्यूशन बनाते हैं. बाय दिस मेथड वी मेक कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स. हम क्या करते, इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करते बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स को बच्चे आपने ऐसे रखना इन द डिस्पर्शन मीडियम, उनके बीच में डिस्टेंस कम रखना, डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रिक आर्क हम स्ट्रक करते बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेम मेटल, जैसे गोल्ड की इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जैसे ये बच्चे दिखाया है. इस इलेक्ट्रिक आर्क से इंटेंस हीट जनरेट होती है, बहुत ज्यादा इंटेंस हीट इज जनरेटेड एंड दैट कॉजेज द मेटल टू इवेपोरेट. वो मेटल को इवेपोरेट कर देती. डिस्पर्शन मीडियम को हमने आइस कोल्ड वाटर से सराउंड किया होता है, आइस एंड वाटर. डिस्पर्शन मीडियम को ठंडा रखा होता है. जैसे ही वेपर बनते दे कंडेंस टू गिव अस कोलाइडल पार्टिकल्स. जो वेपर्स ऑफ द मेटल बनते इनसाइड द डिस्पर्शन मीडियम दे कंडेंस एंड वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन. हमें क्या मिल जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन. सिंपल मेथड. तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर एटसेट्रा आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. In this method, an electric arc is struck between the electrodes of the metal immersed in dispersion medium. Intense heat of electric arc causes the metal to form vapor. Vapor so form condense to form particles of colloidal dimension. Colloidal solution is stabilized by adding small amount of electrolyte. थोड़ा सा उसमें electrolyte डाल देते. How it stabilize वो अलग से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोलाइड सॉल्यूशन को कैसे स्टेबलाइज करता है, विल स्टडी इट. ये बच्चे हो गया इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको ब्रैडिक आर्क मेथड भी कहते हैं. दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रैडिक आर्क मेथड, है ना. इलेक्ट्रिक आर्क समझिए ना, इलेक्ट्रॉन की आर्क इस तरीके से रखना आपने, डिस्टेंस कम, डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. Intense heat is liberated. That heat causes the metal to evaporate. The vapors condense in the dispersion medium and we get the colloidal solution. The last method of preparation बच्चे इसको भी कर लेते हैं, peptidation method. Peptidation is opposite of precipitation. इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, precipitates of the substance are converted into colloidal particles. Precipitates of the substance की जो precipitates हैं उनको कन्वर्ट करते इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स. जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स आपके पास है, यू हैव प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड. आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें बच्चे, कोलाइडल सॉल्यूशन में. फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट आपको पता है एग्रीगेट किए होते हैं इनटू लार्ज साइज. द साइज इज बिगर, मच बिगर देन व्हाट कोलाइडल पार्टिकल. हमने इनको घेरना है प्रेसिपिटेट्स को इनटू कोलाइडल डायमेंशन. हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं. इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन आयन कॉमन टू द प्रेसिपिटेट. जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, मैंने फेरिक क्लोराइड डाला. फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये बच्चे, ये किसके प्रेसिपिटेट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के. इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट क्या डाल दिया बच्चे, व्हाट इलेक्ट्रोलाइट आई एडेड, फेरिक क्लोराइड. इट कंटेन Fe3 पॉजिटिव आयन. तो होता क्या कहता है, जो कॉमन आयन है वो प्रेसिपिटेट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है. इट स्टार्ट एड्सॉर्बिंग ऑन द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट, और जैसे ही एड्सॉर्ब होगा ये प्रेसिपिटेट के पार्टिकल को चार्ज दे देगा एंड दीज पार्टिकल्स स्टार्ट डिस्पर्सिंग. ये पार्टिकल डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगे एंड वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन. हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, कोलाइडल सॉल्यूशन.
बात समझ रहे आप मेरी कि हमने क्या किया, प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट का आयन कॉमन टू द क्या है बच्चे, प्रेसिपिटेट, एक आयन। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हमने क्या डाला, फेरिक क्लोराइड। Fe3 पॉजिटिव आयन है, दे स्टार्ट एब्सॉर्बिंग ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, प्रेसिपिटेट। They give charge to the precipitate particles. So precipitate particles start dispersing and get converted into colloidal size. इसी तरह से देखें सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स को, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बच्चे आपने बनाए, इनको अगर आपने कोलाइडल साइज में कन्वर्ट करना है, दीज आर प्रेसिपिटेट्स, इसको मैं डाउनवर्ड एरो दे देता हूं, इसमें मैं डालूंगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या है, सिल्वर पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो इसका जो कॉमन आयन है सिल्वर पॉजिटिव, इट गेट एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ क्या बच्चे, प्रेसिपिटेट। ये इसको बिखेर देगा चार्ज आने की वजह से। द प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स स्टार्ट डिस्पर्सिंग एंड अल्टीमेटली वी गेट कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो ये है क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। मैंने कहा ना, इट इज अपोजिट ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर रहे हैं कोलाइडल फॉर्म में। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। When electrolyte is added to freshly prepared precipitates, the suitable ions from the added electrolyte are adsorbed by the precipitate. For example, on adding ferric chloride to ferric hydroxide precipitate, a reddish brown colloidal solution of ferric hydroxide is formed. In this case, Fe3 positive ions from solution get adsorbed on precipitates of ferric hydroxide and convert precipitates into colloidal form, है ना। जैसे देखिए फेरिक क्लोराइड ने Fe3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव दिया, तो ये Fe3 पॉजिटिव इसके सरफेस पे एब्सॉर्ब हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। डायग्रामेटिकली बच्चे ये दिखाया है, इट इज ए प्रेसिपिटेट एंड इट कन्वर्ट इट इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स बाय गिविंग इट चार्ज। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट की बात की, वो भी दिखाया है। क्या तो कई बार हम क्या करते हैं, पेप्टाइजेशन करते हैं बाय एडिंग अनदर क्लोराइड। इसमें तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया ना, अनदर क्लोराइड ऐड करके करते हैं। फॉर एग्जांपल, पेप्टाइजेशन ऑफ लैंप ब्लैक इज कैरिड आउट बाय एडिंग बम। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नोन एज इंडियन इंक, पॉलीसीआई इंडियन इंक जो हम बनाते हैं ना, इंक जो है आपकी पॉलीसीआई एसिड वो पानी में डिसॉल्व होगी नहीं, तो हम उसमें क्या डाल देते हैं बच्चे, गम। गम डालते, गम डालने की वजह से जो आपके कालिक है, लैंप ब्लैक है, वो कन्वर्ट हो जाती है इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस वाज ऑल अबाउट प्रेपरेशन ऑफ क्या बच्चे, होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा बच्चे। थैंक यू वेरी मच।